Over the next 10 years, India may spend over 9 to 10 lakh crore rupees on power transmission infrastructure. At the same time, government plans to install more than 25 crore smart meters. And data center capacity of India is expected to grow rapidly as the digital economy expands. So there are three massive mega trends. But here is an interesting question all investors should ask. Who actually built this infrastructure behind all of this? Because renewable power plants are useless without transmission network. Smart meter needs grid infrastructure. And data center के लिए आपको extremely reliable power system चाहिए ही चाहिए. Behind the scene, a few engineering companies are quietly building the backbone of India's power ecosystem. उनमें से एक कंपनी का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी. For decades, this company has been executing high voltage substation and transmission EPC projects across country. But now the story is evolving. ये कंपनी खुद को पोजीशन कर रही है at the intersection of power infrastructure, smart grid modernization and data center growth. So the real question for investor is Techno Electric just another EPC contractor? Or could it become a key beneficiaries of India's next power and digital infrastructure cycle? Let's break it down today. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिताभ और मैं करता हूं स्टॉक मार्केट को सिंपलीफाई आपके लिए ऑन आवर चैनल कॉल्ड साधन स्टॉक्स. सो इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड एंड लाइक्ड आवर वीडियो देन जस्ट डू दैट राइट नाउ बिकॉज वी आर गोइंग टू हेल्प यू बिकम अ बेटर इन्वेस्टर. जस्ट स्टे कनेक्टेड throughout this journey called Sadhan. Welcome to a fresh video on Sadhan when we are going to deep dive into a company which is at a transformation stage. There are three mega trends emerging and this company is one of my favorites. So let's dig deeper into a company called Techno Electric. तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेक्नो इलेक्ट्रिक को हमने अपने चैनल पे 1.5 साल पहले कवर किया था when the price was around 700 and we invested into this company and we shared with all of you so that you could understand कि इस business में हो क्या रहा है because the company was under a transformative stage. So it's a good time to have a recap of what I discussed back then in just 1 minute and that is the crux of Techno Electric thesis and here you go. So important thing to notice here is the rise of total addressable market जिसे TAM भी कहते हैं. कंपनी ने दो प्रेजेंटेशन निकाले थे, एक Q3 FY24 के एंड पे और Q4 FY24 के एंड पे. तो दोनों में उन्होंने ट्रांसमिशन सेगमेंट के बारे में बात की कि अपॉर्चुनिटी साइज क्या है. तो जब उन्होंने Q3 में अपडेट किया था तो उन्होंने ट्रांसमिशन सेगमेंट में अपॉर्चुनिटी अपने लिए सिर्फ 60,000 करोड़ की बात की थी. बट उन्होंने कॉन कॉल में हिंट किया था कि ये मार्केट साइज एक्सप्लोड होने वाली है. तो एक्चुअली वैसा ही हुआ. Q4 की जब रिजल्ट आई तो उन्होंने जो गाइडेंस दी, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया है, उसमें उन्होंने ट्रांसमिशन सेगमेंट का मार्केट साइज 3,56,000 करोड़ अनाउंस किया है, विच इज लाइक 6x जंप. तो टेक्नो की ऑर्डर बुक भी इसी प्रोपोर्शन में बढ़ी है. ट्रांसमिशन सेगमेंट में जो ऑर्डर बुक है विच हैज बिकम 2.5x of their Q3 order book, which was around 2,000 crore. 1,000 से ये 5,000 crore का order book हो गया. So 2.5x growth in ट्रांसमिशन सेगमेंट ऑर्डर्स. सो दैट वाज द रीजन. ये क्लिप हाईलाइट करता है किसी भी कंपनी को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसकी इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन में अगर कोई स्टाइल चेंज हो रहा है या कोई इंपॉर्टेंट नंबर जो है वो चेंज हो रहा है, बड़ा हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम TAM expansion हुआ, around 6x TAM expansion हुआ. Company has mentioned it their investor presentation, but if we are not willing to go through the investor presentation and pause and think and compare with the last quarter का क्या बता रहे थे, तो we will miss out on opportunities like this. So we keep doing this, we keep looking at documents very closely. So that's why it's good idea that you turn on the bell notification so that you get a timely update on these businesses from time to time, which we keep sharing on Sadhan. TEECL, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, इसका बिजनेस मॉडल पहले समझते हैं. ये 3 वर्टिकल में ऑपरेट करती है. बेसिकली इट्स एन ईपीसी कंपनी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन. दैट्स द फुल फॉर्म ऑफ ईपीसी. दोस्तों, हम कोई भी प्रोजेक्ट देखते हैं, चाहे वो मेट्रो का हो या रोड बनाने का हो, तो वहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो ईपीसी कंपनी का होता है, क्योंकि वो कंपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग करती है, डिज़ाइन करती है, फिर उसके हिसाब से जो मटेरियल चाहिए होता है, उसके हिसाब से जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो प्रोक्योर करती है और उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करती है. यानी ईपीसी इज द कंपनी विच इज गोइंग टू बी द प्रोजेक्ट मैनेजर, विच इज गोइंग टू बी द
asset owner sometime also, and which is going to be a asset deployer also. So टेक्नो इलेक्ट्रिक एज ए कंपनी पावर सेक्टर में तीनों मोड्स में काम करती है, यानी कि पहला मोड जो होता है जनरेशन का, पावर जनरेट करने का, दूसरा ट्रांसमिट करने का, और थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन. सो तीनों मोड में ये TECL ऑपरेट करती है इन पावर सेक्टर. बट एक दूसरा वर्टिकल जो इसका है वो है एसेट डिप्लॉयमेंट का, यानी कि इस मॉडल में कंपनी क्या करती है कि वो EPC के पहले और EPC के बाद वाला काम. EPC के पहले यानी प्रोजेक्ट जीतना, तो कोई भी कंसेशन अवार्ड होता है, कंसेशन अवार्ड करने वाली एक गवर्नमेंट एजेंसी होती है या फिर कोई एक मल्टीलैटरल एजेंसीज भी हो सकती हैं, तो उनसे कंसेशन लेकर के एसेट को डिप्लॉय कराने का काम जो है दैट इज कॉल्ड एसेट डिप्लॉयमेंट. फॉर एग्जाम्पल जो ट्रांसमिशन के जो नए बिडिंग प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, TBCB जिसे बोलते हैं, जिसमें कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है, वहां पे आप एसेट डिप्लॉयर का रोल प्ले करते हो. सो दिस कंपनी इज ऑल्सो an asset deployer, which means they own TBCB projects which they made themselves as an EPC. They kind of deploy the assets on behalf of the concessionaire, which in case of TBCB power grid का asset होगा, but deployment जो है वो TECL कर रही होगी. स्मार्ट मीटर में भी सेम मॉडल है, तो वहाँ पे भी एसेट डिप्लॉयमेंट का मॉडल लेकर के ये कंपनी आगे बढ़ रही है. अब थर्ड लाइन ऑफ बिजनेस है जो कि कंपनी बहुत पहले से इसमें डैबल करती है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बीइंग द ओनर ऑफ द एसेट. पहले एसेट डिप्लॉयर की तरह उसने कोई बिड जीता, EPC को इनवाइट किया, यानी खुद को इनवाइट किया, और उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को मेंटेन किया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टिल गवर्नमेंट अलाउ यू टू बिकम द ओनर. सो ये कंसेशन पीरियड इट कुड बी 10 years, 20 years, 30 years. सो फॉर एग्जाम्पल विंड प्रोजेक्ट्स में आप एसेट ओनर होते हैं फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, और जब तक वो लीज जमीन की रहती है तब तक आप उस एसेट पे विंड टरबाइन लगा सकते हैं. दिस कंपनी हैज प्लेड इट्स रोल एज अ विंड पावर जनरेशन कंपनी ऑल्सो इन पास्ट, और रिसेंटली अगर हम बात करें तो डेटा सेंटर में दिस कंपनी का गेम प्लान है कि टू बिकम एसेट ओनर अगेन. सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट जिस पर हम लोग बात करेंगे. At Sadhan, when we look at company, we always try to look at their ROIC very closely, and we have developed a framework which is called Sadhan ROIC Shift. इसमें हम कोशिश करते हैं कि कंपनियां जो है वो राइट वर्ड मूव करें, और इस कंपनी का आप देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड तो FY23 में वो अराउंड 8% मार्जिन कर रही थी नोपैट वाइज, और अभी वो अराउंड 12% से ज़्यादा का नोपैट मार्जिन जो है वो कर रही है, 12-13% कर रही है, एंड इट हैज़ ऑल्सो मूव्ड अपवर्ड्स. Like their invested capital turnover has also increased from FY24 around 1.5 to around nearly 2. So the company is utilizing its asset. They have seen a landmark shift, a goalpost shift into the margin profile also. The company is doing fantastic as per our ROIC shift. So अगर आप साधन ROIC shift के बारे में थोड़ा डिटेल जानना चाहते हैं तो इसे एक्सप्लेन करता हुआ हमने एक वीडियो अभी बनाया है जिसपे हमने हाईएस्ट ग्रोथ गाइडेंस वाली कंपनीज को सॉर्ट आउट किया है फॉर आफ्टर Q3 numbers. And we applied this Sadhan ROIC shift framework on nearly 30 companies. And उसके बाद जो फिल्टर होकर के जो कंपनियां बची हैं वो आप वहाँ पे जाके वीडियो में डिटेल में देख सकते हैं. There are a couple of interesting names out there. So also I would like to say that this is something which we noticed when we looked at this company around 1.5 year back, जहाँ पे हमने इस कंपनी को साधन ROIC shift मेंशन किया था, और उसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसके कारण we picked up a position into this company was the expansion into the total addressable market. So coming back to the business transformation this company is going through, and that's very important because initially when I looked at it, it was an EPC company specifically focused on transmission and power, and they have a legacy of 40 years. And the best part which I liked back then was that they have built more than 50% of PGCIL substation. तो PGCIL का mainly दो काम है, एक तो है कि ट्रांसमिशन वायर ले करना और दूसरा सबस्टेशन बनाना. सो सबस्टेशन विच इज अ हाई मार्जिन हाई प्रोडक्ट, उसमें उन्होंने अगर 100 सबस्टेशन बनाए हैं तो मोर देन 50 प्लेसेस पे PGCIL हैव यूज्ड एक्सपर्टीज ऑफ टेक्नो इलेक्ट्रिक. सो दैट शोज द मोट ऑफ दिस कंपनी. एंड हाई वोल्टेज पे आपको पता है कि मार्जिन अच्छे होते हैं, तो हाई वोल्टेज पे कंपनी ऑपरेट करती है. एज यू कैन सी दैट 400 to 765 kV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन्स पे ये काम करते हैं. Also, they help in installation of GIS,
which is gas insulated substation, AIS, air insulated substation, STATCOM, which is basically a grid stabilizer. So this company has an order book of around nearly 10,000 crore as of December 2025. 63% of it is coming from transmission and 7% from TBCB assets. So nearly 70% of future top line of this business is going to come from EPC business. But the focus today is on smart meter, which is basically a DBFOOT project. D stands for design, B for build, F for finance, O for own, O for ऑपरेट एंड T for ट्रांसफर. यानी कि आपको डिजाइन करना है, बिल्ड करना है, फाइनेंस करना है, ओन करना है, ऑपरेट करना है एंड देन ट्रांसफर करना है स्मार्ट मीटर को. तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे. सो कंपनी ने अराउंड मोर देन 22 लाख मीटर इंस्टॉल करने के प्रोजेक्ट जीते हैं, जो 2600 करोड़ का प्रोजेक्ट वैल्यू है. दे आर गोइंग टू वर्क अक्रॉस MP, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड एंड त्रिपुरा. सो इस कंपनी की एक खास बात यह है कि ये अपना डोमेन खुद डिसाइड करती है. ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो वहां पे जाकर के वो बिड करने लगती है, बिकॉज कंपनी इज ब्राइट इन स्पॉट्स एंड दे नो देयर स्ट्रेंथ. जहां पे बहुत ज्यादा बिडिंग है, जहां पे GMR, अदानी एंड दे आर फाइटिंग फॉर AMIPS projects, which is basically smart meter projects, वहां पे ये they are not participating. They are participating into states which are लेस कॉम्पिटेटिव, लाइक JNK में कोई जाके प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता है जनरली. त्रिपुरा है कहाँ है बहुत लोगों को नहीं पता है. सो दैट हैज बीन द strength of this company, that they work on their sweet spot. This business is particularly around 93 month concession वाला business है, यानी नियरली 9 years का आपको टाइम मिल जाता है. तब तक आपको डिज़ाइन बिल्ड ओन भी करना है 9 years के लिए. इंस्टॉल करने के बाद आप ओन भी करते हो. तो इसमें इन्होंने रफली 1000 करोड़ का कैपेक्स इस बिजनेस को दिया है और 500 करोड़ और देना है. तो 1500 करोड़ का इनका टोटल एक्सपेक्टेड outlay है, which they are yet to complete, and they were saying that by this year December 2026 they will be able to complete all of this. Third business is data center, which is basically is the future profit driver. So they are building up a hyperscaler data center at Chennai of 36 megawatt. उसमें से 6 मेगावाट लाइव हो चुका है. नोएडा में 16 मेगावाट का वो रेलटेल के लिए कर रहे हैं और कोलकाता में भी 16 मेगावाट का उनका प्लान है. साथ ही साथ ये इन्होंने रेलटेल के साथ मोर देन 100 डेटा सेंटर्स बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट जीता है, जिसमें 20 इयर्स तक रेवेन्यू शेयरिंग होगी. और ओवरऑल दिस बिजनेस टारगेट इज 250 मेगावाट बाय 2030-32 एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 5000 crores of cumulative capex in data center. So this company is investing period now in terms of data center and it has been the case for quite some time. अब हम कंपनी का ऑर्डर बुक देख लेते हैं एक बार. तो क्वार्टरली ट्रेंड्स मैंने प्लॉट किया आपके सामने. तो हम लोगों ने इसे पिक कब किया था, जब Q3 FY24 के नंबर्स आ चुके थे, तब वो सिर्फ 5400 करोड़ का ऑर्डर बुक था और जंप आई थी ऑर्डर बुक में 9000 करोड़ की हो गई थी Q1 FY25 में, और अभी भी अराउंड 10,200 करोड़ की ऑर्डर बुक है. एंड यू कैन सी दैट लास्ट 4 quarters they have built more than 10,000 crore of order book, and also they are L1 into many places. So this company is looking rock solid in terms of their order book. अगर हम 2 साल पहले के बेस से देखें तो नियरली डबल हो चुका है ऑर्डर बुक. They have maintained a consistent pipeline of L1 bids around 700 to 1500 crore, जिसमें वो L1 डिक्लेयर हो चुके हैं. So effectively the order book is around 11,000 plus crores. अप्रैल 25 से फेब 26 तक ऑर्डर इनफ्लो जो है वो 2500 करोड़ की हुई है और 750 करोड़ पे L1 है. एंड दे आर टारगेटिंग 3000 करोड़ फॉर फुल FY26. तो 9 मंथ में 2500 किया और 3000 का टारगेट है FY26 में नए प्रोजेक्ट जीतने का. दे हैव अ वेरी फेयरली डाइवर्सिफाइड क्लाइंटेल विथ टॉप 5 क्लाइंट्स कंट्रीब्यूट 57% एंड कंसंट्रेशन इज वेरी स्टेबल. दे आल्सो हैव अ फेयर शेयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर क्लाइंट्स लाइक अदानी, इंटीग्रेट, स्टरलाइट. These three put together brings on 26% of the business. अब स्मार्ट मीटर में हम प्रोजेक्ट्स, अगर चारों प्रोजेक्ट्स को ध्यान से देखें तो जो रफली 2.24 मिलियन का उन्हें स्मार्ट मीटर लगाना है, उसमें सबसे ज़्यादा उन्हें 7 लाख इंस्टॉल करना है इन कश्मीर. अगेन देन इंदौर में 5,50,000 इंस्टॉल करना है. सिमिलर अमाउंट इज देयर फॉर रांची, झारखंड एंड त्रिपुरा इज द लोएस्ट. सो अगर ओवरऑल वैल्यू इनकी 2612 करोड़ की हो जाती है. और इंस्टॉलेशन स्टेटस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस वीडियो बिकॉज द फोकस इज देयर. इंदौर में अराउंड 76% इंस्टॉल हो चुका है एंड दे हैव गिवन अ टारगेट दैट मार्च 2026 तक पूरा 100% इंस्टॉल हो जाएगा. कश्मीर में दिसंबर 2026 और रांची
में जून में हो जाना चाहिए और त्रिपुरा में दिसंबर 2026। तो इन्होंने पहले ये टारगेट सितंबर का रखा था, अभी ये 3 महीने पीछे हो गया है। बट अगेन द पॉइंट इज दैट दिस ऑल ऑफ दिस वुड be closed by FY27. So FY27 is going to be a landmark year from a smart meter business perspective. And why I'm saying this, because no, you might not have heard somebody saying this about Techno कि स्मार्ट मीटर से इतना ग्रोथ आएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि स्मार्ट मीटर में कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है। स्मार्ट मीटर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको क्विक डोप दे देता हूँ, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर grasp of things when we are looking at Techno, and so that you can monitor it quarterly basis पे। स्मार्ट मीटर के इकोनॉमिक्स को हम देखें इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 1000 करोड़ उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है, 500 करोड़ इज रिमेनिंग आउट ऑफ 1500 करोड़ टोटल। रेवेन्यू मॉडल जो है वो पीएमपीएम का है, पर मीटर पर मंथ पेएबल है उनको बिल। दे हैव बीन ग्रांटेड ओवर 93 मंथ्स का कंसेशन पीरियड। प्रोजेक्ट एबिटा इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 20% ओवर कंसेशन लाइफ। सो एक बार कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो उस समय एक वो एबिटा मार्जिन बुक करेंगे एज ए ईपीसी, बट एज ए एसेट डिप्लॉयर ओवर नेक्स्ट 8-9 years they will be getting around 20% of EBITDA margin in this business. Project level पे debt जो है जीरो है, because they have funded everything totally on internal accruals. Why I am seeing smart meter is a big theme, because budget में मैंने इस बार नोटिस किया कि जो RDSS जो है, जो revamp distributed sector scheme, जिसमें एलोकेशन पिछले साल 12,665 करोड़ का था, इस साल वो बढ़ के 18,000 करोड़ हो गया, जो रफली 30% प्लस का ग्रोथ है। सो विच इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर कैपिटल फॉर दिस कंपनी एंड अदर ईपीसी कंपनी इनटू दिस स्पेस, and also other companies like who are supplying smart meters like Genus or HPL Electric, they all are looking at this number with a very optimistic outlook. So strategic vision for this company is to de-risk the lumpy EPC revenue profile to a structured and annuity kind of revenue income में वो बढ़ जाएगा rather than doing a EPC। तो ये कंपनी ने EPC खुद किया है और जो कंसेशन भी खुद ही जीता है, तो एसेट डिप्लॉयर भी खुद ही है, तो वो एज एसेट डिप्लॉयर वो 9-10 years तक रेवेन्यू बुक करेंगे। स्मार्ट मीटर बिजनेस का इकोनॉमिक्स अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल कॉन्टेंट कवर्ड इज 1000 करोड़ एंड 500 इज रिमेनिंग। सो दिसंबर 2026 तक वो बैलेंस 500 करोड़ भी स्पेंड आउट कर देंगे। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट ये है दोस्तों कि वो 1500 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे और अभी तक उनको सिर्फ हार्डली 10-5 करोड़ का रेवेन्यू बुक हुआ है इस लाइन ऑफ बिजनेस से। और margins are, you are seeing that is 73% overall contribution margin. So if they are going to invest 1500 crore, they are going to book 2600 crore of revenue sometime. अब ये sometime क्या है इसके बारे में मैं आपको क्लैरिटी दे दूं through this diagram which we have made out for you. So पहले हम लोग रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि ये स्मार्ट मीटर है क्या। तो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ RDSS स्कीम जो पावर मिनिस्ट्रीज को रन करती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। नाउ उन लोगों ने ये स्कीम सारे स्टेट डिस्कॉम्स को बोल दिया कि आप लोग टेंडर के बेसिस पे इसमें बिड इनवाइट करें और जो सबसे कॉम्पिटेटिव बेसिस पे कर रहा है उसे आप टेंडर दे दें। सो इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं AMISP कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये एक सर्विस प्रोवाइडर का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी टेक्नो इलेक्ट्रिक की सब्सिडरी जो है उन्होंने ये AMISP कॉन्ट्रैक्ट जीता हुआ है। नाउ दे हैव इन्वॉल्व्ड टेक्नो इलेक्ट्रिक एज एन EPC to procure smart meter from smart meter manufacturers like Genus and Schneider and HPL of the world, जिनके पास BIS और CA certification है। And EPC work is being done by Techno Electric, installation and commissioning and communication integration they are doing. After installation is done, then they need to go through an important step that is called SAT, Site Acceptance Test, जिसमें डिस्कॉम जो है वो वेरीफाई करता है कि ये आपने जो मीटर जोड़ा है वो सही है या नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली द ओनर्स इज ऑन डिस्कॉम टू सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी एंड चार्ज इन अ राइटफुल मैनर। सो वो जब डिस्कॉम वेरीफाई कर लेता है, देन दे इश्यू समथिंग कॉल्ड OGL, ऑपरेशनल गो लाइव। तो ये OGL हो जाने के बाद जो भी कंसेशनियर है वो अपनी बिलिंग स्टार्ट कर सकता है, विच इज पर मीटर पर मंथ। तो ये रेवेन्यू मॉडल है। तो इसमें अगर हम डिटेल में देखें तो कहाँ पे आप रेवेन्यू बुक करते हो वो समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि आपने मीटर इंस्टॉल कर दिया तो आपको रेवेन्यू हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आपने SAT कंप्लीट कर दिया तो भी आपको रेवेन्यू नहीं बुक कर सकते। जब आप OGL अचीव कर लोगे, गो लाइव हो जाएगा, तभी आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 लाख मीटर इंस्टॉल किया और उसमें से 80% कुड पास द SAT, सो 80,000 मीटर आपने इंस्टॉल कर दिया
तो आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 80,000 मीटर का पेमेंट. Out of that, if 70,000 could achieve the OGL, then you can bill only 70,000 meter ka payment. So that's how the billing works into this game, and that's where understanding of this structure is important, because Techno Electric is working as an EPC और उसकी पेमेंट जो है वो OGL के बेसिस पे ही होगी. और SAT लेवल पे अभी चल रही हैं बातें, SAT के बाद OGL होगा, and then only they will be able to book प्रॉफिट ऑन द 1,000 crore इन्वेस्टमेंट विच दे हैव ऑलरेडी डन. तो ट्रांचेस में हो रहा है. तो आपने देखा 76% कंप्लीट हो चुका है. तो वो जैसे ही कंप्लीट होता है तो उनको पेमेंट मिल जाएगी पूरी की पूरी, वहां 700-800 करोड़ की आपको वहां से मिल जाएगी. दे आर एक्सपेक्टेड टू गेट अ गुड नंबर ऑफ रेवेन्यू विच आई गेस इज मोर देन 1,000 करोड़ फ्रॉम स्मार्ट मीटर्स, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क ऑलरेडी किया हुआ है और सिर्फ 500 करोड़ का कैपेक्स बाकी है. बात सिर्फ OGL लेने की है. तो इनका रेवेन्यू वुड कम टू दिस कंपनी इन दिस कमिंग फाइनेंशियल्स. अब डेटा सेंटर पे बात करें तो हाइपर स्केल लेवल पे ये एक कैंपस बनाना चाह रहे हैं. उनकी स्ट्रैटेजी है कि दे विल डेवलप 3 डेटा सेंटर्स, लार्ज वन लाइक चेन्नई 36 मेगावाट विच इज अ फ्लैगशिप, जहाँ पे फेज 1 कंप्लीट हो चुका है. 6 मेगावाट इज ऑपरेशनल सिंस सितंबर 25. PUE जो प्लांट का एक पावर यूसेज का इंडेक्स होता है वो 1.3 उन्होंने अचीव किया है, which is a great number to achieve, and the capex they have done is around 550 to 600 crore. Phase 1 is expected to be fully leased by H1 of FY27, but they want to expand it to 45 megawatt in future. The target is to do 36 megawatt over around 2.5 to 3 years from now. Noida is the second big center, 60 megawatt, 0.5 megawatt operational करना है. क्या प्लान है by March 2026, and additional 5 megawatt by next year, FY27. This is under partnership with RailTel. कोलकाता इज अनदर जहाँ पे वो स्टैंड अलोन खुद ही डेवलप कर रहे हैं, 16 मेगावाट, और फेज 1 इज गोइंग टू बी कमीशन बाय लेट 2027. अब डेटा सेंटर में एक तो रेवेन्यू होता है जो कि टिपिकली आप एज अ लैंडलॉर्ड लेते हैं वहाँ पे. दूसरा होता है एक वैल्यू एडेड सर्विस. उसमें आप नेटवर्क सर्विस जो प्रोवाइड करते हो, जो कि आप DOT लाइसेंस लेकर के कर रहे हैं, जैसे चेन्नई में वो कर रहे हैं, तो वहाँ से भी उनको एक वैल्यू एडेड सर्विस जो कि हाई मार्जिन होता है, 40 to 50% मार्जिन वाला बिजनेस मिल जाता है. दैट इज़ वन. ऑल्सो दे प्रोवाइड क्लाउड सर्विसेज, जो कि उन्होंने जो क्लाइंट वो ऑनबोर्ड कर रहे हैं, तो वहाँ से भी 20 to 30% ऑफ डेटा सेंटर का जो कोर रेवेन्यू है वो वहाँ से आप बेयर मेटल एंड क्लाउड सर्विसेज में वो एड ऑन कर सकते हैं. दैट्स देयर स्ट्रैटेजी टू गेट मोर वैल्यू एडेड सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम देयर रेंटल. बट FY27 में द total contribution of data center business is going to be only 100 crore, which is very small for a company which does around 2,000-3,000 crore of top line. So it's not an immediate data center story, but data center will be play out sometime soon. तो इसमें एक चीज़ और हाईलाइट करने वाली है कि ये चीज़ स्केलेबल है, because they have done a MOU signing with RailTel for 102 data centers, 102 places जहाँ पे रेलवे के स्टेशंस हैं जो कनेक्टेड हैं आपस में, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछा हुआ है. सो उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, उन्होंने ग्राउंड वर्क काफ़ी किया हुआ है. स्टेजेस में इस टेक्नो को ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, और दैट्स वेयर द ग्रोथ विल कम इन द फॉर्म ऑफ एज डेटा सेंटर. और एज डेटा सेंटर बेसिकली क्यों चाहिए? बिकॉज अगर आप दिल्ली में है और आपका जो डेटा सेंटर है वो मनेसर में है, फॉर एग्जांपल, विच इज़ 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ी सी लेटेंसी हो सकती है. बिकॉज 40-50 किलोमीटर के बियॉन्ड अगर दूरी हो जाती है तो आप कुछ चीज़ें हाई स्पीड पे नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लेटेंसी. तो इट हैज़ टू बी स्लाइटली मोर अप्रॉक्सीमेट, एंड दैट्स वाई एज डेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट है, जो बिल्कुल ही एक छोटा सा डेटा सेंटर आपके क्लाइंट के एंड के पास ही रखते हैं, जो ज़्यादा किलोमीटर दूर नहीं हो, तो वो एज डेटा सेंटर ये इंस्टॉल कर रहे हैं विथ रेलटेल. एक बजट में 2 कैटलिस्ट आए थे इस कंपनी के लिए. एक तो मैंने आपको बता दिया, RDSS में एलोकेशन वाज मच हायर. सेकंड कैटलिस्ट विच वाज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ टैक्स हॉलीडे. गवर्नमेंट ने इनके लिए एक गेम चेंजर रेगुलेशन लाया है. व्हाई इट इज गेम चेंजर? बिकॉज आप डेटा सेंटर बना लेते हो, बट अगर आपको लीजिंग के लिए लोग नहीं आते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट दैट हैज टू बी रिटन ऑफ अल्टीमेटली. आपको पता है कि बहुत सारी बाहर की कंपनियां इंटरेस्टेड हैं इनटू गेटिंग इनटू द इंडियन डेटा सेंटर ऑन अ रेंट, लाइक मेनी हाइपर स्केलर्स आर इंटरेस्टेड. तो उनको गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि दे विल गेट एन टैक्स हॉलीडे ऑन क्वालिफाइंग फॉरेन क्लाउड इनकम अंटिल 2047. सो ये जो टैक्स हॉलीडे इन्हें मिल रहा है उसके कारण बहुत सारी फॉरेन क्लाउड
कंपनीज जो हैं वो इनके डेटा सेंटर में दे विल कम ऑन रेंट. गवर्नमेंट हैज आल्सो क्लैरिफाइड दैट डोमेस्टिक प्लेयर को इसके कारण कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा बिकॉज दे विल आल्सो गेन द सिमिलर टैक्स हॉलीडेज. दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप फॉर ऑनबोर्डिंग हाइपरस्केलर्स in our country. This is going to be very positive for Techno Electric because it is very positive for the long-term compute in India, and it will reduce the capex risk for Indian owned platforms. So basis this, company की management का कहना है कि they may look beyond 250 megawatt also in data center business, which is some time away, but the company management was saying that at one point of time it could happen that data center revenue will be higher than their transmission EPC business revenue. So the company is looking at data center in a much deeper way, and that's why I think it is going to be a beneficiary of data center theme into India. And if you want to dig deeper onto data center business of Techno Electric, then we have done a separate video around 5-6 months back. वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और you will find it here. You can watch out what were the development happening in this company with respect to this company as a data center proxy. तो दूसरा कैटलिस्ट जो इस कंपनी के लिए काम कर रहा है वो इन पावर ट्रांसमिशन सुपर कैपेक्स साइकिल में है. इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी एंड सीईए जो कि इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी कमीशन है, दे हैव रिवाइज्ड द पीक डिमांड फॉर इंडिया upwards, like 277 gigawatt is going to be FY27 peak demand, and that requires us to invest into renewable energy. So we are looking at more 500 gigawatt of renewable energy by 2030. This will make us to invest around 2.5 lakh crore in national transmission. Union Budget 2026 had a positive surprise for all power sector EPC companies, as they say that power sector outlay would be around 3 lakh crore, which is 39% higher YOY from last budget. Also, apart from budget, the right of way, which was a roadblock for EPC companies into this sector, उसको भी streamline कर दिया है गवर्नमेंट ने, and the rules very agreeable to the seller and to the buyer, which is Power Grid in this case. So Power Grid के लिए right of way acquire करना थोड़ा आसान हो जाएगा because there has been a streamlining in the rules. Apart from this, there has been strong incentive for high voltage intra-state schemes. सो गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी उत्साहित किया है कि वो इंट्रा स्टेट में भी नए हाई वोल्टेज पे ऑपरेट करें सो दैट इफिशिएंसी कुड बी बॉट इनटू द सिस्टम. सो रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करने के लिए देयर इज अराउंड 1,14,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन हैज टू बी लेड एडिशनली, एंड दैट विल also necessitate around 7,76,000 MVA transformation capacity addition. So estimated investment because of renewable energy integration is around 4.25 trillion by 2027. So green energy corridor और इस तरीके के बहुत सारे नए स्कीम्स आई हैं जहां टेक्नो कैन फाइंड देयर स्वीट स्पॉट as they dominate into 400 to 765 kV high voltage substations, STATCOM and GIS and AIS. टेक्नो के लिए एक स्वीट स्पॉट क्रिएट करता है, साथ ही साथ एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है दैट बिकॉज इंडिया इज डबलिंग ट्रांसमिशन कैपेसिटी बाय 2032, which gives a multi-decadal visibility to a pure play EPC company like टेक्नो. तो अब हम कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखते हैं. दे हैव डन अ फैंटास्टिक नंबर इन Q3. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 26% से ग्रो हुई है और पैट उससे भी ज्यादा ग्रो हुई है, यानी कि 45% से. इट वाज अ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट एज इट्स आल्सो शोन स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज एट प्ले व्हेन प्रॉफिट ग्रोथ सिग्निफिकेंटली आउटपेस्ड द रेवेन्यू ग्रोथ. So that was the highlight of Q3 FY26. And if we talk about the core EBITDA margin, which is very essential as an investor for me, so उस कंपनी का अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन देखेंगे, पैट मार्जिन इज 17% लास्ट क्वार्टर, बट कोर एबिटा मार्जिन वाज 14.1%, एंड कंपनी हैज गाइडेड अराउंड 14 to 14.5 kind of core EBITDA margin. And that is the most important part because as an EPC company, 14% is a great EBITDA margin. So this company is playing the role of an EPC company to the core, and there are assets on top of it like data center, smart meter and all. But the normalized EBITDA margin is doing very fine, and that's what I as an investor look at कि जब भी मैं किसी कंपनी को एनालाइज करता हूँ तो उसका कोर ऑपरेशन जो है वो इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है. That is the fundamental check I do, and I am finding this company doing very well in terms of core EBITDA margin. 9 monthly नंबर में भी ग्रोथ काफी अच्छा है. YOY ग्रोथ 39% का है इन टॉप लाइन, and core EBITDA has also grown by 40%. बट पैट मार्जिन हैज ग्रोन बाय 49%. सो इसका रीजन है कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट है उससे भी उन्हें अच्छा रिटर्न मिल के आ रहा है. दैट्स व्हाई द पैट ग्रोथ इज स्लाइटली हायर.
एंड पैट मार्जिन हैज ऑल्सो इम्प्रूव्ड बाय मोर देन 100 बिप्स, 1% से ज़्यादा का ग्रोथ है, अराउंड 17% का पैट मार्जिन इज अ फैंटास्टिक मार्जिन इन EPC business. Nobody can beat this in terms of the financial performance. So we can look at this company as a company which is doing really well as financially also. So numbers are there to support the story. एक चीज और आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि 9 मंथ के जो नंबर हैं वो पिछले साल के फुल ईयर के नंबर के बराबर थे, यानी कि 3 क्वार्टर में उन्होंने 4 क्वार्टर का टॉप लाइन लगभग जनरेट कर दिया है. एंड पैट ग्रोथ इज एक्चुअली 1.25 times of revenue growth. So at least 25-30% kind of revenue growth हो तो PAT growth would be around 40% kind of. So that is an yearly picture we are looking at. अब लास्ट में हम लोग गाइडेंस की बात कर लेते हैं और आउटलुक. So FY26 में रेवेन्यू गाइडेंस जो है 3,200 करोड़ to 3,500 करोड़ का है. एग्जीक्यूशन लेड ग्रोथ ईयर है FY26. वहीं FY27 में दे आर टारगेटिंग अराउंड 4,500 करोड़ ऑफ टॉप लाइन. EPS का गाइडेंस उन्होंने FY26 में 55 to 60 का दिया था. द टारगेट फॉर FY27 इज ₹75 EPS. ऑर्डर इनफ्लो ऑफ 3,000 करोड़ फॉर FY26 which was revised from earlier higher target. थोड़ा रिड्यूस किया उन्होंने इस बार नए प्रोजेक्ट्स अवार्डिंग का. ऑर्डर बुक विजिबिलिटी जो है 10,000 to 11,000 करोड़ की है इस साल, और FY27 में भी सिमिलर बेसिस पे रैंप अप होनी चाहिए. डेटा सेंटर रेवेन्यू का उन्होंने बोला FY26 में अर्ली रैंप अप फेज होगा, एंड FY27 जो कि अराउंड 100 करोड़ का होना चाहिए, एंड FY27 में 300 करोड़ का, एंड नाउ दे आर सेइंग दैट FY27 में 100 करोड़ की डेटा सेंटर से रेवेन्यू आएगी. तो थोड़ा सा वहाँ पे डिले हो रहा है डेटा सेंटर में, बिकॉज दिस कंपनी इज ट्राइंग टू डू इट एफिशिएंटली, और थोड़ा स्लो कर रहे हैं. एग्जीक्यूशन का थोड़ा सा वहाँ पे हमें स्लोनेस देखने को मिल रहा है, इसलिए 300 करोड़ पहले बोला था, अब वो 100 करोड़ पे आ गए हैं. सो उन्होंने स्मार्ट मीटर में FY26 में गाइडेंस दिया जाए 3 to 5% काइंड ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन वुड कम फ्रॉम स्मार्ट मीटर, बट FY27 में दे मिस्टीरियसली स्पोकन दैट it will remain a controlled share of revenue. A controlled share of revenue is not a defined term, but what we think is it has to be around 700-800 minimum crore of revenues, and which would be around 15 to 20 odd percentage of their new top line in FY27. So we are expecting very big from smart meter, because the implementation they have done is worth the salute, because other companies like Adani and GMR, they could do just 15-20% kind of installation, but you could see in the last slide, in the slide when we were discussing smart meter, कि इन्होंने कहीं पे 76%, कहीं पे 40%, कहीं पे 50% kind of project complete किया हुआ है. This is a very remarkable. They have the right to win into this. Some important con-call key insights we can talk about is the company is evolving from pure play EPC to a digital infrastructure platform. And they said that this is not a branding, it is a DNA change. And they are trying to leverage power expertise, which was their main input for digital age, to build high value annuity assets, which is a very shareholder friendly aspect of it. They also spoke about 2 super cycles converging. One is power transmission super cycle, around 2.5 lakh crore investment, plus data center explosion of around 1.2 gigawatt to 3.5 gigawatt by 2030. That's the India's target to grow in terms of IT load. So you cannot have AI without power. That's true. You cannot have stable grid without a digital intelligence. So we sit at the intersection. Data center mein they also explained about the economics that FY26 DC revenue was modest due to migration timeline, but we are at inflection point in FY27, targeting 100 plus crore of top line with 50 to 60% of EBITDA. If we compare this margins, 50-60% margin with the EPC margin, which was around 14-15%, so it is 4x of EPC margin, and that is quality of earning shift this company is trying to bring into the business. This company is a very disciplined EPC company, and they're saying that there are ample opportunity into EPC, but we have become choosy. They have limited the intake to 3,000 to 3,500 crore annually until top line reaches 5,000 crore, which is beyond FY27. We believe in continuity of performance over aggressive booking. That's the likable aspect of this company, because one reason why I chose this company was their not so aggressive stance. They rather focus on the quality of earning. If you're watching till this point, which means you like deep dive what we do here, so you would really enjoy our deep dive, which we share every month with our Sadhan Pro members, where you will get a ready-made library of more than 15 deep dives, which I'm sure would add to your investment journey. You can check out the Sadhan Pro as a part of Sadhan channel membership, and gradually you can
upgrade to Sadhan Prime and Sadhan Prime Plus, because in Sadhan Prime Plus we share 2 videos every month. Also, apart from the Ask Me Anything sessions, which we keep doing every month, and there are lot many information bites which are very useful and action oriented, and I'm sure people are benefiting from it, and I'm sure that you would definitely enjoy watching us very closely under Sadhan channel membership. So do check out the join button besides the subscribe button for channel membership. So thanks for watching this video. Hope to see you in the next deep dive, and if you have certain business which you would like us to deep dive on, then type the business you would like us to look closely. And if you like our video, don't forget to like, share and subscribe, and don't forget to turn on the bell notification so that our video reaches to your inbox. Where certain people who have not turned on the notification bell and they miss out on the timely update we keep sharing on market, on investing at Sadhan.